معزز سامعین اکرام اور خواتین حضرات، آپ حضرات کا استقبال کرنا چاہوں گا۔ مسلم لوگوں کا ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور دنیا بھر میں کورونا کا قہرام مچا ہوا ہے۔ اس حالات میں بھی مسلم لوگ اپنے گھر میں رہ کر کے ہی روزہ کا پورا کام کر رہے ہیں، روزہ بھی رہ رہے ہیں اور گھر میں ہی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور رمضان کا انتم عشرہ چل رہا ہے جو 10 دن بچا ہوا ہے۔ اس عشرے میں مسلم لوگوں کو کیسے اپنی گھر میں رہ کر کے کام کرنا چاہیے، عبادت کیسے کرنا چاہیے، یہ معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اس حالات میں مسلم لوگ کیسے اپنی غلطیوں کو اور عام طور پہ لوگوں سے کس طریقے سے معافی مانگ رہے ہیں، اسی حوالے سے آج میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود ہیں مولانا منصور عارفی صاحب، مولانا کلیم صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم آیوگ دوارا گٹھت انوگمن سمیتی کے صدر صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مسلم آیوگ دوارا گٹھت انوگمن سمیتی کے سدسیہ ایوم نیپال حج سمیتی کے سدسیہ سمیت رہے مراز احمد ہمالیہ صاحب۔ میں سبھی لوگوں کو ایک ساتھ استقبال کرنا چاہوں گا۔ میں اس بحث کو اور آسانی سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور اس کے لیے میں پہلے حاجی صاحب سے کہوں گا کہ ابھی کی حالات کو، اس دیش کی دنیا کی حالات کو عوام کے ساتھ سامنے رکھ دیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت میرے ساتھ میں الحاج مولانا منصور احمد عارفی صاحب اور الحاج مولانا کلیم صاحب کی موجودگی میں آپ نے قوم مسلم اور حالات زندگی کے بارے میں جو جاننا چاہتے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، تو حضرت کی ہم توجہ چاہتے ہیں کہ حضرت آج پوری دنیا میں بے بسی کا عالم، ایک کوہرام برپا ہے۔ ایسے حالات میں قوم مسلم میں اللہ کا جو انمول تحفہ ہے ماہ رمضان، جو بہت بڑا یہ رحمت اور برکت مغفرت والا دن تھا، ہمارے اور آپ کے بیچ سے آہستہ آہستہ گزر رہا ہے۔ ہم اور آپ اب آخری عشرے میں چل رہے ہیں۔ آج 22 ماہ رمضان کا آج 22 ہوگا۔ تو ایسے حالات میں اب ہمیں اور آپ کو جو علماء دین نے ہمیں بتایا ہے، جو آپ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے، قوم مسلم کو بتایا ہے کہ یہ آخری عشرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں 10 دن قیام کرتے تھے، اعتکاف جس کو کہا جاتا ہے کرتے تھے۔ اب یہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، لاک ڈاؤن میں مسلمان تو مسجد میں جا کے اعتکاف نہیں کر پائے گا، لہٰذا جو حضرات مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، چاہے امام صاحب ہوں، چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے مؤذن صاحب ہوں، یا جو فرات وہاں 4-5 آدمی ہے، کم سے کم وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے، اور یہ 10 دن جو طاق راتیں ہیں جس میں آپ لوگوں نے بیان کیا ہے، یہ طاق راتیں ہیں، یہ طاق راتیں 21 کو بھی ہو سکتی تھی، 23، 25، 27، 29۔ علماء دین آپ لوگوں کا کہنے کے مطابق کہ ہم لوگ 27 کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے 27 کو۔ تو جو شب قدر میں جو اہم بات ہے کہ جو شب قدر میں علماء دین نے فرمایا ہے کہ شب قدر جس دن ہوتا ہے اس دن اللہ کے حکم سے فرشتے جبریل زمین پہ آتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کا حکم سے فرشتے آئیں گے زمین پر، تو ہم مسلمانوں کو یہ امید ہے کہ پوری دنیا کا بلا وبا ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسے حالات میں ہم آپ ایک ذمہ دار، اس شہر کے ذمہ دار ہیں، قوم مسلم کے آپ لیڈر ہیں، مسلم سماج کے اندر جو علماء دین ہے اس کے آپ ایک اغوا ہیں۔ تو آپ کو راشٹر انتر راشٹر میں اس بات کو جانا چاہتا ہے کہ الحاج مولانا منصور احمد عارفی صاحب قوم مسلم کے اغوا ہیں، اور وگت کے دنوں میں دیکھا بھی گیا ہے کہ ہر کام میں آپ آگے آتے۔ تو ایسی استھتی میں آج آپ تمام مسلمانوں کو بتا دیں کہ اس بار جو ہم لوگ زکوٰۃ کا رقم دیں گے وہ مدرسوں کو نہ دے کر غریب یتیم محتاج کو دیں گے، تاکہ دنیا کو ہم ایک سندیش دے سکے کہ جب ملک نیپال میں مصیبت پڑی ہے تو مسلمانوں نے دل کھول کے انسانیت کا کام کیا ہے، جو مذہب اسلام کا پیغام ہے۔ کیونکہ مذہب اسلام کا یہ سندیش بھی ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کا رقم غریبوں کو محتاجوں کو دیا جائے۔ تو ابھی حالات جو ہے وہ حالات تو بہت نازک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے فرض کی نماز، ہم نے 8 جمعہ، ہمارا دل رو رہا ہے کہ ماہ رمضان جیسے مقدس دنوں میں جمعہ کی نماز ہم نے اپنے گھر میں جوہر کا پڑھا ہے،
تو اب الوداع بھی آنے والا ہے، اب عید بھی آنے والا ہے، تو ایسے حالات میں ہم عید کی نماز یا الوداع کی نماز پڑھ کے کون بہت بڑا ہم جنگ جیت لیں گے؟ ہمارا اس وقت مقصد ہے کہ مذہب اسلام کا جو حقیقتاً انسانیت کا پیغام ہے کہ ملک نیپال میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ وبا، یہ جو بلا ہے، یہ وبا بلا کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا مسلمان جس طرح رمضان شریف میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے نماز روزہ عبادت کیا، اسی طریقے سے عید کی نماز بھی ہم اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، الوداع کی نماز بھی ہم اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پرشاسن، چاہے وہ استھانی پرشاسن ہو چاہے وہ کیندری سرکار ہو، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ لاک ڈاؤن کو پورے طریقے سے پالنا کرے اور جو عام نیپالی جنتا میں جو سمسیا ہو، غریبی کا، مزدوریوں کا، جالاداروں کو، ان کے لیے کھانے پینے کا پورا انتظام کرے۔ یہ ہم مسلمانوں کی مانگ ہے۔ ایسی حالات میں شریعتاً دنیاوی طور سے، کیونکہ مولانا منصور احمد عارفی وہ شخص ہے پورا قوم جانتا ہے کہ آپ دنیاوی میں بھی ماہرت رکھتے ہیں اور دین میں بھی ماہرت رکھتے ہیں، لہذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ آج قوم مسلم کو کھلے الفاظوں میں ساری بات بتا دے۔ یہ مسلمانوں کی دل کی تمنا ہے، مسلمان آج اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے پروردگار عالم، اس وبا کو، اس بلا کو دنیا سے اب ہٹا دے، کیونکہ کل یہی غیر لوگ آواز نہ اٹھاویں کہ جب مسلمانوں کا ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ آیا، جس رات سب قدر ہوتی ہے، اس رات میں بھی وبا بلا نہیں ختم ہوا۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں جو عالم دین تشریف فرما ہے وہ کم سے کم یہ 10 دن سب قدر کرے، 10 دن مسجدوں میں عبادت کرے، 10 دن میں مسجدوں میں اتفاق کرے اور اس کا سارا ویوستھا جامع مسجد کرے۔ جامع مسجد اس شہر کا مرکز ہے، اگر جامع مسجد نہیں کر سکتا ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی مسلم آیت میں مجھے جو سنیوجک بنایا ہے انوگمن سمیتی کا، جو مدرسوں میں امام مولانا مسجد میں جتنے بیٹھ کے 10 دن عبادت کریں گے، اس 10 دن کا سارا خرچہ ہم اپنی طرف سے علماء دین کو پورا کریں گے۔ لہذا ایسی استھتی میں آپ قوم کو آگاہ کریں۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، محترم المقام باعزت محمد عالم صاحب، الحاج عبدالحمید صاحب صدیقی و حضرت مولانا کریم صاحب عارفی و جناب محمد معراج صاحب، یہ سارے حضرات ہم لوگوں کے وقت میں جتنا ہو سکا ہم نے کیا۔ ابھی یہ ٹیم یا قوم کے جتنے بھی اغوا ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق رفیق عطا فرمائے کہ قوم ملت کی بڑھ کر چڑھ کر کے خدمت کریں۔ اور جہاں تک قوم کی بات ہے وہ میں آپ کو 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ قوم کے اندر ساری قومیں آتی ہیں، بے شک، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، انسانیت کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا ایک اہم فریضہ ہے۔ بے شک، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا رازداں ہے، میں انسان کا رازداں ہوں۔ بے شک، انسان میرا بھیدی ہے، میں انسان کا بھیدی ہوں۔ بے شک، اس وقت ساری سیاست کو بالائے طاق رکھ کر کے، سارے دنیا کے اور خرافات کو بالائے طاق رکھ کر کے ہمارا جو رمضان المبارک کا 2 عشرہ گزرا، پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے عشرے میں مغفرت، ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، جس کی آج 22ویں تاریخ اور 23ویں شب لگ رہی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام نے عرض کیا، فدا کہ امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ شب قدر کون سی تاریخ میں ملے گی؟ تو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو
आखिरी रमज़ान के आखिरी अशरे के ताक रातों में तलाश करो। बेशक ये और बात है, उलमाए जमहूर 27 को इत्तफाक करते हैं जी। लेकिन तकवा और बेहतरी यही है कि अल्लाह कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर रोज़ उसकी एक नई शान है। बेशक किस वक्त किस जगह पर किस मकाम पर किसकी आवाज़ वो सुन लेता है बेशक। और किसकी दुआ को वो सुन लेता है, जिसके वजह से ये दुनिया में ये बला ने पूरी कायनात को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शिमाल से लेकर जुनूब तक सारी दुनिया की सारी ताकतें फेल हो रही हैं। अब सिर्फ एक ताकत है कि जिसकी तरफ से ये बला नाजिल हुई है उसी को पुकारा जाए और उसकी रहमत की तरफ हम लोग जाया जाए। बेशक बेशक। ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया गुनतुत तालिबीन के दूसरे सफ़े पर जी एक हदीस बात मुरतब की गई जिसमें उस इरशाद को नकल किया गया, बताया गया सबकत रहमती अला गज़बी, ये गुनतुत तालिबीन हुजूर महबूब सुबहानी दस्तगीर आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत से मंसूब है। उसमें क्या कहा गया, अल्लाह ताला ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। फरमाया ऐ कलम तू लिख। कलम ने अर्ज़ किया बारे इलाहा क्या लिखूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या है कलम लिख, सबकत रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। बेशक। तो अब गज़ब उसका नाजिल हो चुका है, बला उसकी नाजिल हो चुकी है। जब अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है तो सबको समेट लेता है, जब अल्लाह की रहमत नाजिल होती है तो गुनहगारों को भी वो समेट लिया करती है। बेशक। ऐसी सूरत में ये शब कद्र का और ये रमज़ानुल मुबारक की तारीख का, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है जी। और इस अशरे में आज 22वीं तारीख है जी। हम दुनिया के नहीं पूरी दुनिया के, पूरे नेपाल के मसाजिद, मदारिस, मज़ारात पे जितने भी लोग हैं सब हम इस बात का एहसास कर चुके हैं कि हमको दुनियावी ताकत ने कतई नहीं रोका है। दुनिया में कोई ताकत नहीं है किसी को मज़ार पर रोक दे जाने के लिए। बेशक बेशक। किसी को कोई ताकत नहीं कि मस्जिद में जाने इसीलिए हमको रोक दे, लेकिन हमारे आमाल ने, हमारे बदकिरदारियों ने, हमारी शामत अमली ने, अल्लाह ने एक छोटी सी चिंगारी डाल दी है जिससे पूरी दुनिया जल रही है। अब हम उसके गज़ब के लिए, उसके गज़ब से डर करके उसकी रहमत की तरफ भागना हमारा काम है। बेशक। अब उसकी रहमत की तरफ हम कैसे भागें? शब कद्र है, आज से शुरू हो रहा, कल से शुरू, ये 20 से शुरू हुआ, 21 गया, 22 है, 23 से शब कद्र शुरू हो रहा है। इस शब 23वीं शब है आज। हम जुमला उलमाए कराम जो मसाजिद के अंदर हैं, हमारी इल्तिमास है कि वो एक रात या ये 4 रात ये सोच लें कि अगर इस 4 रातों में मंसूर अहमद की दुआ नहीं सुनी जा सकती है, हम गुनहगार हैं, ठीक है, आपकी दुआ नहीं सुनी जा सकती है, हम गुनहगार हैं, ठीक है, लेकिन कोई न कोई अदा अल्लाह ताला किसी की अगर पसंद कर लेता है और पूरे रूए ज़मीन से, खासकर मुल्क नेपाल से और भारत से और पूरी दुनिया से इस बला को ख़त्म करके और हमको खुशी की लहर दे दे, हमारी ज़िंदगी जो पटरी से अलग हो चुकी है, हमारे बच्चे जो बिलक रहे हैं वो अल्लाह की रहमत में आ जाएं और उसके लिए वो दुआ करें। और उस दुआ के लिए ली खमसतुलुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाया हातमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा और फातिमा का विर्द करें और पढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला से तहज्जुद तक जागें, तहज्जुद की नमाज में ये पढ़ें और पढ़ करके गिरगिरा करके अल्लाह की बारगाह में भीख मांगें। वो जब किसी के आंसू को देखता है, जब गज़ब देखता है कि दुनिया के अंदर उरियानियत, दुनिया के अंदर जुल्म और सितम के बादल ज़्यादा मर गए, तो उसकी कहीं गज़ब भी नाजिल होता है। लेकिन जब अपने बंदों की निगाहों में वो अश्कों के कतरात को देखता है, उसके चेहरे को भीगा हुआ देखता है और देखता है कि कहता है बंदा ए मेरे माबूद तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तो उसकी रहमत जोश में आती है और जोश में आ करके आने वाहिद में ये बला ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। ये हम अच्छा, जैसे अभी आपने जो फरमाया वो बहुत बेहतरीन बात बताई, काबिल तारीफ़ है, लेकिन मैं आपको इल्तिजा दे दूँ, जानकारी दे दूँ
کہ کل 21 شب تھی، جب 21 کی رات تھی تو شب قدر تو 21 سے بھی شروع ہو جاتا ہے، 21 23 25 ہے، تو میں نے جامع مسجد کے مفتی صاحب کو میں نے برداشتہ فون کیا کہ حضرت آج کے آپ کے یہاں انتظام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے یہاں کوئی انتظام نہیں ہے شب قدر کا، تو قوم کی یہ چاہت ہے، قوم کی یہ گزارش ہے، پورا شہر اس بات کی نظر آپ لوگوں کی طرف ہے کہ آپ لوگ کھلے اعلانیہ، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے، کھلے اعلانیہ لوگوں کو اعلان کر دے کہ اللہ کے واسطے کہ جو حضرات مسجد میں ہے وہ شب قدر کا انتظام کرے۔ حاجی صاحب نے آپ نے جو کہا جامع مسجد کی بات، یہ جامع مسجد کی انتظامیہ کمیٹی سمجھ سکتی ہے اور وہاں کے منتظمین حضرات کا کام ہے۔ میں اپنے علماء سے التماس کر رہا ہوں کہ جن جن مسجدوں میں ہیں اگر ان کو پانی ملتا ہے تو پانی سے بھی اپنے روزے کا وہ سحری کر لیں، اور پانی پر اللہ، کیونکہ وہ ماننے والے ہیں ان اکابرین صحابہ کرام کا کہ جن صحابہ نے اور جن اللہ والوں نے 7 دن کے بعد روزے افطار کیے ہیں، پانی کو لے کر کے اور رب کی بارگاہ میں کہیں کہ اللہ میں تیرا دی ہوئی نعمت پانی نعمت عظمیٰ ہے، اس کو پی کر ہم سحری کر کے اور تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا سے اس میں بلا کو ہٹا لے، اس میں کوئی مسلم ہی نہیں، ساتھ ساتھ سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں کو سکون عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اگر یہ دعا کی گئی تو انشاءاللہ الرحمن یقیناً ہماری دعا قابل قبول ہوگی، اور اگر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ساتھ ساتھ زکوٰۃ و فطر و صدقات کی بات الحاج عبدالحمید صاحب قبلہ نے جو میرے سامنے رکھی، بہت ضروری ہے کہ جو اللہ نے جن کو نوازا ہے، جن کے پاس اللہ نے زکوٰۃ دینے کی وسعت دی ہے، صدقات دینے کی وسعت دی ہے، وہ اپنے زکوٰۃ و صدقات کو مکمل طور پر اس جگہ پر استعمال کریں، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کو کپڑا پہنانا، یتیم بچوں کی مدد کرنا، ان کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھنا، یہ بچانے کا کام ہے۔ اور کسی کو نہ دیکھیں جو مجبور ہو اس کو بھوکا نہ جانے دے اور اس کو کھانا کھلائیں۔ اور عید الفطر کی جو نماز ہے، جہاں تک جمعہ کے الوداع کی نماز ہے، ہم اس میں آپ کو نہ روک سکتے ہیں اور نہ آپ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کسی مصلحت کے چل رہا ہے، اس میں ہم طاقت آزمائی نہ کریں بلکہ ہم انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کوئی راستہ ہی نکال دے تو ہم نماز جمعہ الوداع بھی پڑھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے، حکومت کے دلوں میں یہ بات پیدا کر دے کہ مسلمان لوگ اپنی عید کی نماز پڑھ لیں، تو اس کا کوئی سسٹم بنا دے تو اس سسٹم کے اعتبار سے ہم اپنی عید الفطر کی بھی نماز ادا کر لیں، ورنہ ہم کوئی پنجہ آرائی نہ کریں، اس لیے کہ پیغمبر امن کے آپ امتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر کے دنیا میں آئے، اگر رسول ہی نہ آتے تو ہم کو نماز نہ ملتی، ہم کو روزہ نہ ملتا، ہم کو حج و زکوٰۃ و فطرات کا کوئی طریقہ نہ معلوم ہوتا، ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے۔ تو ہمیں پیغمبر امن کے امتی ہیں، لہذا امن و شانتی کو برقرار رکھتے ہوئے جہاں ہم نے 2 عشرے گزارے ہیں، تیسرے عشرے میں ہماری دعاؤں کا کام ہے کہ ہم جتنا رو سکیں۔ میں اپنے معزز ماؤں بہنوں سے بھی التماس کروں گا کہ وہ زیادہ تر اس بارے میں معصومانہ خطا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ زیادہ معصومیت ہوتی ہے ان کے اندر، ان سے میری التماس ہے، وہ میری ماں ہیں، میری بہن ہیں، میری بچیاں ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے رب کائنات، دنیا کی زندگی پٹری سے اتر چکی ہے، کسی کا بچہ غائب ہے وہ نہیں آ پا رہا ہے، کوئی ماں سے دور ہے، کوئی باپ سے دور ہے، کوئی مر جاتا ہے اس کو ہم دیکھنے نہیں پاتے ہیں۔ اے رب کائنات، اپنے اس محمد کے صدقے میں جس کے صدقے میں تو نے لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک، اے اللہ جس کے صدقے میں تو نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اس میں محمد کا تو واسطہ دے دے اور دنیا کو بتا دے کہ اس میں محمد کا یہ طاقت ہے کہ یہ بنا جا سکتی ہے، اور یہ ہم ضرور کہیں گے کہ دور ہو جا نظر سے اے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے اے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ اور ایک بات میں عرض کر کے جا رہا ہوں، اس سے بلا ٹلتی ہے، نادی علی مظہر العجائب والغرائب
तजिदूहु औनुन लका फिन नवाइब कुल्ला हम्म व गम्मिन सयंजनी बिफज़लिका या अल्लाह व बाया हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा व इब्नाहुमा वल फातिमा शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार और शाह मन सुल्तान आलम साहिब दुलदुल सवार हर बलाए रद्द बाशदी बखा हफ्ता दाबार शाह मन सुल्तान आलम सैयद अहमद कबीर खातिर महाराज माकुन या गौसुल आजम दस्तगीर या गौसुल आजम दस्तगीर या गौसुल आजम दस्तगीर या अली अदरिकनी या अली अदरिकनी या अली अदरिकनी फी क़ज़ाए कुल्ल हाजती या अली या अली या अली मैं गिरा मुझे संभालो ऐ अली मैं गिरा मुझे संभालो या अली मैं गिरा मुझे संभालो ऐ अल्लाह तो अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम और पंजतरे पाक के नाम का सदका अता फरमा दे कि आज के इस बयान के बाद बयान ये बला दूर होना शुरू हो जाए और दुनिया के अंदर अमन और शांति पैदा हो जाए और पैगम्बर अमान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको अता कर दे। ये मेरी दुआ है और सबसे मेरी अपील है कि अमन और शांति को बरकरार रखते हुए हम आखिरी अशरे को गुजारें और जिससे जो कुछ हो सके गुरबा व मसाकीन कमजोरों की मदद करें। इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं मौलाना साहब से मौलाना कलीम साहब हमारे साथ भी हैं। मौलाना साहब, जैसे कि ये लॉकडाउन चल रहा है और हमारे ज़िले में काफ़ी मस्जिदें हैं, कुछ मस्जिदों में नमाज हो रही है कहकर की भी बात आ रही है, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आपने सवाल किया लॉकडाउन है और लॉकडाउन के मातहत में जो है हुक्म है कि मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर नमाज़ें ना हों, तो इसको शरीयत ने भी छूट दिया है। जो साहिब शरीयत ने नमाज और रोज़ा के लिए फ़र्ज़ करार दिया है, वही साहिब शरीयत ने ऐसे वक्त में हुक्म फरमाया है कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें और अपने अपने घरों में ठहरें। तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये नहीं है कि जो है नमाज जा करके मस्जिद में जो है नमाज पढ़ लें तो उनको सवाब मिल जाएगा और बख्शे जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल अम्रु फ़ौक़ल अदब, हुक्म जो है अदब के ऊपर है। पहला हुक्म था कि नमाज पढ़ो जमात के साथ, अब दूसरा हुक्म है कि अब अपने घर में पढ़ो ऐसे वक्त में। तो नमाज जुमा की फ़र्जियत भी हमारे ऊपर से साक़ित है और जो है जमात भी हमारे ऊपर से साक़ित है, लिहाजा अपने अपने घरों में ही अदा करें। हजरत एक बात और बताते चले आप कि जैसे इत्तिकाफ का जो मसला है वो हम घर पे कर सकते हैं कि नहीं, कि मस्जिद में होना जरूरी है? देखिए, इत्तिकाफ जो है वो सुन्नत किफ़ाया है जी। और जो रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा है, इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ फरमाया करते जी जी, आपकी सुन्नत भी है जी, सुन्नत मुतला सुन्नत किफ़ाया है जी। लिहाजा चूँकि अब ऐसे वक्त में जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि हुक्म के ऊपर हुक्म आ गया, तो उस दूसरे हुक्म जो है पहला हुक्म नासिख हो जाता है दूसरे हुक्म से। तो दूसरा हुक्म है अब ऐसी सूरत में जो खालिस लिवज्हिल्लाह बंदे अल्लाह के हैं, नमाज और रोज़ा के पाबंद हैं और वो चाहते कि एतकाफ अदा करना, ऐसे ही तो टाइम निकल चुका। 21वीं शब से पहले पहले जो है असर से पहले जो है 20 के असर के बाद जो है वो एतकाफ का टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन ये तो टाइम और वक्त निकल चुका सुन्नत का, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार रहा। नहीं हजरत, इसी में आप जैसे आपने अभी कहा कि ये समय निकल गया, तो ये जो समय निकल गया, समय जो फेरा गया, इसमें तो कौम की ना उसमें नहीं है कमी। इसमें जो यहाँ के उलमाए दिन, जैसे जामा मस्जिद के मुफ्ती साहब है, उनको इस विषय में नहीं सोचना चाहिए, या यहाँ के उलमाए दिन को नहीं सोचना चाहिए? तमाम आलिम दीन मस्जिदों में मरकज के लोग जिम्मेदार हैं, उनकी तो जिम्मेदारी थी, या इंतजामिया कमेटी है उसकी जिम्मेदारी नहीं है? शरीयत के मसाइल में जो है इंतज़ामिया तो इतनी नहीं जानती है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। लेकिन ये है कि उलमाए दीन और मुफ्तियान कराम की जिम्मेदारी थी कि इसके बारे में कौम को आगाह करें और मुंतज़मीन को आगाह करते और कोई लाए अमल कोई तरीक़ा अख्तियार करते, जिससे कि ये जो अपने अपने घरों में नमाज़ें अदा करते हैं उस जगह पर अपने अपने घरों में एतकाफ़ कर सकते हैं। जो हजरात जैसे इमाम साहब, मौलाना साहब, मौजूद जो इज़्ज़त 4-5 लोग मस्जिद में रह रहे हैं बराबर, तो कम से कम वो लोग तो एतकाफ़ कर ले, वो लोग तो सब मनाएं। तो वो
वो लोग शब कदर मना सकते हैं, एतकाफ भी कर सकते वो लोग हैं। तो कौम के लिए दुआ करें। एतकाफ जो है वो हर अल्लाह के लिए जो है, अल्लाह की रज़ा के लिए वो अभी भी एतकाफ कर सकते हैं, अभी भी जो है वो बैठ सकते हैं और जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकते हैं। लेकिन रही बात ये कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। आज हम ही अमल करने से दूर हैं तो कौम हमारी अमल क्या करेगी? आज हम ही जो है क्या हमारे ही में कमी है। आज हम ही नमाज और रोज़ा के, ज़कात और सदक़ात और खैरात के पाबंद खालिस लिवज्हिल्लाह नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर दिखावे के हो रहे हैं। तो हमारी बातों में असर कहाँ से हो, हमारे कौल और अमल में असर कहाँ से हो? लेकिन रही बात ये कि अभी भी वक्त है, जब भी अल्लाह की बारगाह में सर झुका दें, जब भी अल्लाह की बारगाह में खुलूस नियत से आएँ, तब भी वो सुनने वाला है और तौबा कबूल करने वाला है। लिहाजा हम इस पे छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। रही बात ये कि एतकाफ सुन्नत है और एतकाफ जो सुन्नत है वो रमज़ान शरीफ का आखिरी असरा, उसके अलावा भी आप एतकाफ जितना टाइम चाहें कर सकते हैं और उसका भी अजर अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा, ऐसी बात नहीं है। रही बात ज़कात और फितरा, ये भी जो है अपने घर में, अपने रिश्तेदार में, अपने पड़ोस में देखें और जो है अपने मोहल्ले में, उसके बाद में अपने शहर में देखें, उसके बाद में दूर दराज वालों को देखें, इस पे भी आप अमल पैरा हों, लोगों को अच्छे तरह। दूसरी बात यह है कि ऐसे वक्त में कमाई किसी की भी नहीं हो पा रही है, सब लोग अपने अपनी जगह पर जाम हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे फ़कीर हो, कोई अमीर हो। अमीर भी कोई ऐसे वक्त में हो सकता है कि वो भी परेशान हो सकता है कोई किसी न किसी सूरत में। लिहाजा ऐसे वक्त में हम सादगी से भी ईद मनाएं तो बहुत बेहतर है। हम नए कपड़े ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम नए कपड़े इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि हमसे 10-20 गरीब देख करके वो अपने आप में हसरत ले सकते हैं, मायूसी का आलम ले सकते हैं। तो हम भी सादगी से ईद मनाएं और जो है दूसरे को व्यवस्था करें। और यही नहीं बयान करने के लिए कि 1 का 70 मिलता है, हम भी उस रास्ते पर चल करके कौम को दिखाएं, लोगों को दिखाएं। इबादत पे ज्यादा जोर दें, इबादत पे ज्यादा जोर दें, तौबा पे ज्यादा जोर दें। ये भी एक इबादत है, ये भी एक इबादत है। गरीबों को ख्याल करना ये भी एक इबादत है। भूखों को खाना खिलाना ये भी एक इबादत है। पड़ोस का ख्याल करना ये भी एक इबादत है। ये बहुत ऐसी कुछ इबादतें हैं जो सुन्नत के दायरे में होती हैं, मुस्तहब के दायरे में होती हैं। उस पर अमल करने से फर्जियत से भी आगे हो जाता है, फर्जियत से भी आगे हो जाता है। जैसे कि नमाज पढ़ना है और नमाज का टाइम है, मिसाल के तौर पर ईशा की नमाज का वक्त है और हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं और कोई गरीब दरवाजे पर आ गया भूखा, उसका जिगर भूखा है, उसका जिगर प्यासा है और नमाज का वक्त है और वो सवाल कर रहा है, दस्ते सवाल कर रहा है और इधर नमाज फर्ज है और उधर सदका क्या है, नाफिला है। तो अब बताइए, नमाज को हम ताखीर कर दें, उसका जिगर भर दें, तो इंशाअल्लाह ताला उसका जब जिगर भरेगा, उसके दिल की दुआ निकलेगी तो वो सदका भी कबूल होगा, उसके सदके में नमाज भी कबूल होगा। मिराज भाई, हम लोग इस प्रोग्राम के एकदम आखिरी लम्हे में हैं। आवाम को अभी भी जो लॉकडाउन सरकार ने जो घोषणा जारी रखा है, इसको पूर्ण रूप में पालन करने के लिए आप किस तरीके से एक संदेश देंगे? और दूसरी बात, जो गरीब मुस्लिम या और अन्य कौम के लोग हैं, उन लोगों की खिदमत के लिए इस रमज़ान मुबारक महीने में किस तरीके से लोगों को काम करने के लिए आप गुजारिश करेंगे? आपके अभी जो लॉकडाउन का चल रहा है, हमें और तमाम समुदाय के लोगों को इसका पालन करते हुए आगे निकलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही सुरक्षा के लिए बनाया गया हुआ है। जितना हम बाजार में निकलेंगे, रोडों पे निकलेंगे, उतना ही हमारे लिए समस्या उत्पन्न होगा। खास करके मैं उन लोगों से इस वक्त ऐसे हालात में मैं गुजारिश करना चाहूँगा जो बेचारे गरीब तबका के लोग हैं, जो दैनिकी मजदूरी करते हैं। मैंने देखा है मार्केट बाज़ारों के अंदर उनके घर के बच्चे औरतें जो है खरीदारी में व्यस्त हैं, जबकि ये जो लॉकडाउन का समय है, ये वबा का जो माहौल है, महामारी का जो समय अभी चल रहा है, ये मुझे और क्या तमाम बुद्धिजीवियों के कहने के अनुसार जो है ये महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, महीनों भी लग सकता है इसके अंदर। ऐसे हालात में मैं उन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा
कि अपने पास जो भी नगद पैसे हैं उसको आप सुरक्षित बचा करके रखें, और उन पैसों से ज़्यादा आप घर में खाद्यान्न जो सामान है, जो खाने पीने वाली सामान है, उन चीज़ों को खरीद कर के घरों में रखें, और जो दवा का सामान है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसको भी आप उस तरफ आप ध्यान दें। नाजायज़ और अनावश्यक चीज़ों में अपने पैसा को बर्बाद मत होने दें, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में जो है आप ही को समस्या उत्पन्न होगा। और मैं इसके लिए तमाम मस्जिद के जिम्मेदार और उलमाओं से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इस बारे में जो है हर मस्जिदों से अनाउंस भी हो जाए कि जो कौम को आगाह कर दें कि इस तरीके से ऐसे माहौल के अंदर अपने पैसे को बचा करके रखें, आगे और इससे भी बुरा दिन आ सकता है। लिहाजा अनावश्यक चीज़ों में अपने पैसे को बर्बाद न करें। और तमाम अभी समय बाकी है, और जैसे कि अभी मान लीजिए रोजे का ही चल रहा है महीना, हम और हमारे समुदाय के तमाम लोग ज़कात का जो फंड है, इमदाद का जो फंड है, जो इस महीने में 2.5% निकाला जाता है, वो तो 2.5% निकाल ही रहे, उसके अलावा भी अपने तरफ से जो है इमदाद भी कर रहे हैं लोग। घर घर से जो है तमाम समुदाय को बिना भेदभाव के सभी समुदाय को राहत खाद्यान्न सामग्री दिल खोल करके लोग जो बांट रहे हैं। आप हर महल्ले में आप देख सकते हैं जो ज़कात देने के लायक हैं वो किसी न किसी स्तर से मदद और सहयोग करते आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारा नेपाल जी जैसे मुन्ना मंसूरी साहब और आप लोग जो है आज महीनों से मुस्लिम की तरफ से तमाम लोगों को, ये जो गरीब हैं मजदूर हैं उनको आप राशन दे रहे हैं, ये मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो हो रहा है। नेपाल क्या है प्रक्रिया? इसका प्रक्रिया अब हम लोग का जो प्लानिंग हुआ, जैसे कि 2 महीना पहले जब लॉकडाउन का शुरुआत हुआ उसी हफ्ते से कि कहीं पे किसी का ये प्लानिंग भी सरकार ने भी इस बात को नहीं सोचा था उस वक्त, उसी वक्त हम लोग जो है शुरू कर दिए कि भाई ये समस्या आगे चल के और उत्पन्न बड़ा हो सकता है। तकरीबन करीब हम लोग 1.5 महीना पहले से राहत खाद्यान्न सामग्री बांट रहे हैं। प्रत्येक मोहल्ला में उनके घरों में जा करके उनके हालात, उनकी आवश्यकता अनुसार जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे और हमारा निरंतर ये प्रयास जारी भी है। और इंशाल्लाह कल और परसों और इस जो 10 दिन का पीरियड हम लोगों का बचा है इसके अंदर भी हम लोग लगातार इंशाल्लाह गरीबों में हर समुदाय में राहत बात। हम लोग प्रोग्राम के आखिरी में हैं, इस प्रोग्राम का हम लोग समापन दुआ के साथ करेंगे और हिसाब से मैं गुजारिश करूँगा दुआ के लिए आगाज करें। और हज़रात ने जो कुछ कहा है हम एक अल्फाज कह दें कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली है, न है एहसास हो खुद अपने हालत बदलने की। आज इस महफिल में अलहाज मौलाना मंसूर अहमद आरफी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो पूरे कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो वबा बला है ये इसको टल जाए, और जो आपने बयान किया है ये खास तो आलमी दिन इस पर अमल करें। जो लोग मस्जिदों में हैं वो इत्तिकाफ करें, शब कद्र का एहतमाम करें, और इंशाअल्लाह हम लोग भी इस 10 दिन में आखिरी असरा में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है माह रमजान का, इस पे हम लोग भी अल्लाह से दुआ करेंगे ये परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके में ये वबा बला को टाल दे। लिहाजा हजरत से मेरी गुजारिश है कि वो खुशी दुआ कर दे। जो बीमार हैं, जो संक्रमित हैं लोग, उनके लिए और मुल्क नेपाल के लिए भी दुआ कर दे। मुल्क नेपाल में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन। आमीन। या इलाहुल आलमीन, तू बहुत बड़ा रहम वाला है, करम वाला है, अताजुद बख्शिश वाला है। या अल्लाह तेरी रहमत तेरे गज़ब पे भारी है, गालिब है। या रब्बे कायनात, हमारे शामत अमली की बुनियाद पर, हमारे गुनाहों की बुनियाद पर, हमारे बदकर किरदारियों की बुनियाद पर, जालिमों के जुल्म की बुनियाद पर, ए अल्लाह तूने छोटी सी चिंगारी दुनिया में एक बला की शक्ल में नाजिल कर दिया है। ए अल्लाह सारी दुनिया तिलमिला उठी है। ए रब्बे कायनात, जब कोई डर नहीं होता है तो अपने मालिक की तरफ से पूरी दुनिया भागती है। ए अल्लाह हम तेरी तरफ, तेरी रहमत की तरफ भाग रहे हैं। रब्बे कायनात, आज रमज़ानुल मुबारक की 22वीं तारीख 13वीं शब है, आज शब कद्र लग चुका है। ए अल्लाह तो अपने रहमत के सदके में इस बला को आनंद फानन इस दुनिया से उठा ले। कुन कहे फयकून की
भी गुजर जाए। ए अल्लाह तू इतना बड़ा रहमत वाला है कि जब तेरी रहमत गालिब होती है, तेरी रहमत को जब जोश आता है तो वो तेरी रहमत जैसे सूरज निकलता है तो वो नहीं देखता है कि मेरी किरण गंदे पे पड़ रही है, कि मेरी किरण मस्जिद पे पड़ रही है, कि मेरा किरण मंदिर पे पड़ रहा है, कि मेरी किरण खाने काबा पे पड़ रही है। तेरा जब सूरज निकालता है तो जब रोशनी देता है तो गंदों को और अच्छे बंदों को सब पे रोशनी देता है। ए अल्लाह तू रहमत वाला है। अपने रहमत कामिला के सदके में और अपने रसूल के नाम पाक के सदके में इस दुनिया से बला को बिल्कुल दूर कर दे। और आज की इस दुआ से यह कोरोना दुनिया से आधी से ज्यादा शुरू होने की खबर आने लगे। ए अल्लाह तू करम वाला है, तू रहमत वाला है, तू बख्शिश वाला है। ए रब्बे कायनात, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं, तेरे सिवा कोई गमखार नहीं, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं। मौला सारी अकलें फेल हो चुकी हैं, सारे ज्ञान और विज्ञान, सारे साइंस, सारे इल्म नजूम फेल हो चुके हैं। अब अल्लाह तेरे सिवा तू कुल कहे फयकून की मंजिल में हो जाए। ए अल्लाह इस बला को तू हटा ले और आबरू रख ले। तूने आबरू रखी है, तुझे वास्ता है आदम से सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखे ताबा का, उनके रूए अनवर का। या अल्लाह तुझे वास्ता है नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक ताइब की धरती पे भर गया था, उस मुकद्दस खून का सदका अता फरमा दे। ए अल्लाह तेरे नबी के निवासे करबलाए मोहल्ला की तपती हुई धरती पर इस दीन मोहम्मदी के लिए 72 नुपूसे कुदसिया को तलवार के धार के नीचे तेरे रजा के लिए कर दिया था। या अल्लाह उस खून का तो सदका अता फरमा दे। और या अल्लाह इस्लाम की तरफ से यह दुआ किया जा रहा है, या अल्लाह पूरी दुनिया को हम लोग शांति के अंदर ले आ और पूरी दुनिया के अंदर हम लोग शांति पैदा फरमा दे। लोगों को इस खौफ से बिल्कुल दूर कर दे, इस बला को तू हटा ले, अपने करम की भीख अता फरमा दे। तू रहमत वाला है, तू करम वाला है। तेरे सामने गुनाहों की हकीकत एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। मौला तू बेनियाज है और तेरी तू अपने बेनियाजी का सदका अता फरमा दे। तू जिब्राईल और मिकाईल और इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकर्रबीन फरिश्तों के तुझे वास्ता है। या अल्लाह तुझको रुखे ताबा जनाब सैयदना हुजूर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी सरकार दस्तगीर आजम, वो सरकार सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन सज्जदी सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, ऐ मौला गरीब नवाज तुझे मेरी आवाज पर, मेरी दुआ पर आमीन कह दे और इस बला को दुनिया से हटा ले। वास्ता तुझको मैं दे रहा हूँ, तेरी बारगाह में मेरे पास कुछ नहीं है, तुझे वास्ता दे रहा हूँ। सुल्तान सैयदना सैयद सालार मसूद गादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दस खून का सदका दे दे। और ए अल्लाह इस दुनिया से इस बला इस वबा को उठा ले और आज की रात के सदके में और इस रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के आखिर होते होते खुशियों की खबर दुनिया को सुना दे। अंत हस्बी अंत रब्बी अंत मन्ने वल वकील। ए अल्लाह अपने बंदों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमा दे, मोहब्बत डाल दे, दूसरे की बिना तफरीक खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। भूखों को लोग खाना खिलाए, नंदों को लोग कपड़ा पहनाए। ए अल्लाह जिंदगी में पहली बार तूने मुझसे मस्जिदें छीन ली, तुझसे मुझे मज़ारात छीन लिया, तूने मुझसे खाने काबा की हाजिरी छीन ली। ए अल्लाह इससे बढ़कर कोई गुनाह कोई अजाब नहीं हो सकता। ए अल्लाह तू इस अजाब से मुझे निजात दे दे, अपने बंदों को निजात दे दे, पूरे रुए जमीन को निजात दे दे। तू रहम वाला है, ये नजात का आखिरी असरा है। इस नजात के नजात वाली रात के सदके में तू नजात अता फरमा दे। अंत हस्बी अंत रब्बी अंत मन्ने वल वकील अंत फातिह अंत नासिर अंत खैरुल फातिहीन। या अल्लाह इस मुल्क नेपाल बहुत गुर्बत से डूबा हुआ है, बड़ी मजबूरियों में हम लोग हैं, मेरा कोई इंतजाम करने वाला न हो पाएगा। ए अल्लाह बिलखुसूस इस देश
देश से इस बला को बिल्कुल हटा ले और पड़ोसी देश से भी बला को हटा ले। दुनिया के सारे जमीन से जो जहाँ है सब जगह से बलाओं को तू हटा ले। ए अल्लाह तू अपने करम की भीख अता फरमा दे। तू उसका तेरी रहमत जोश में आ जाए और मुस्तफा के लफ्ज मोहब्बत का तू सदका अता फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या करीम बिजाह सय्यदुल मुरसलीन। ए अल्लाह पूरी दुनिया में तेरे छोटे छोटे तेरे बंदों के छोटे छोटे बच्चे आज तड़प रहे कि मेरी ईदगाह कहाँ है। ए अल्लाह तेरे बंदे के बच्चे बच्चियां आज सोच रहे ईद कैसे बनाएगी, अब मेरी खुशियां छिन गई। ए अल्लाह तो अपने रहमत के सदके में अपने बंदों को खुशी अता फरमा दे। और जो भी तेरे सब बंदे हैं, जो भी जिस धर्म के हो सब बंदे हैं, सब पे तू अपने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। ए अल्लाह आबरू बचा ले। ए अल्लाह तू करम वाला है, रहमत वाला है। इस नजात वाली रात के सदके में नजात अता फरमा दे। अंत हस्बी अंत रब्बी अंत मन्ने बल वकील अंत फातिह अंत नासिर अंत खैरुल फातिहीन अंत मौला अंत वारिस अंत खैरुल वारिसीन। या करीम बिजाए सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन। ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं हो सकती, मैं बदकार हूँ, लेकिन तूने फरमाया है कि अगर तुम गुनहगार तेरी दुआ नहीं कबूल होगी तो उन चेहरों को पेश कर जिन चेहरों को मैं कबूल करता हूँ। तो तेरी बारगाह में मैं सुल्तानुल आरिफीन शाह सुल्तान आरिफ का चेहरा पेश करके दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह उनके रुखे ताबा उनके तबस्सुम रेजी के सदके में इस बला को हटा ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।